اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات اور میرے پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہم اٹلاس آف دا قرآن کا سیکنڈ ایپیسوڈ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت حابیل اور قابیل کا مختصر حال، اور اس کے بعد حضرت شیت علیہ السلام کے ساتھ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا تفصیلاً اس ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ ناظرین، حبوط آدم علیہ السلام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبوط یہ لفظ ہبت سے بنا ہے۔ ہبت کے معنی ہوتے ہیں نیچے اترنا، ہا با تا ہبت۔ یہ جو ہے قرآن کریم کی ہی اصطلاح ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ 36 البقرہ قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 36 میں آیا ہے، وَقُلْ نَحْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اس آیت کریمہ میں احبطو یہ جو لفظ آیا، وہیں سے حبوط کے معنی مفسرین نے لیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں حکم دیا تھا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو یہ اترنا جو ہے یہ ہبت کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا، ان کے ساتھ ابلیس کو اور سانپ کو اس زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسا میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا آپ کو کہ آپ کو سری لنکا میں اتارا گیا، تو جیسے کہ عام روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو الہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا، اور پھر چل کر دونوں عرفات یعنی مکہ مکرمہ میں آ ملے۔ اور یہ جگہ جو معروف جگہ ہیں جبل رحمت، جو کہ ایک چھوٹی سی چوٹی ہے، ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے عرفات کے میدان میں، یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ اور اس لیے میدان عرفات کا نام عرفات اس لیے ہوا کیونکہ دونوں اس جگہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ عین را فا عرف کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا، ایک دوسرے کو پہچاننا، تو اس لیے اس جگہ کا نام عرفات ہوا۔ اور یہ حوالہ قصص القرآن میں آیا ہے کہ آپ دونوں جو ہے اس وقت مکہ مکرمہ کے میدان میں، میدان عرفات میں ملے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم فہم قرآن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو واقعات، جو قصے قرآن حکیم میں آئے ہیں، ہم ان کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ جیسا کہ پہلے ہی ہم بتا چکے کہ آپ کو اس سیریز میں ان شخصیات اور ان مقامات کی نشاندہی کریں گے جن کا تعلق قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ہیں، اور ہم اپنے تئیں بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ تک آتھینٹک انفارمیشن تاریخ اور جغرافیائی حوالہ جات سے فراہم کر سکیں۔ اس کی غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں غور و فکر کی عادت پڑ جائیں، اور ہم جب کلام پاک پر تدبر کریں تو ہمیں وہ لوکیشنز، وہ مقامات میں ذہن نشین آتے رہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ بآسانی ایک ریفرنس کے طور پر ان کو معلوم پڑ جائے۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کرے۔ واقعات کا مطلب وہ قصے جو کہ انبیاء کرام کے زمانے میں وقوع پذیر ہوئے۔ ناظرین، اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل کے قصے کے متعلق دلچسپ معلومات جو مختلف مورخین سے ہم نے لی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ قصہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ لوگ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان آیت کی تلاوت قرآن مجید سے کیجئے، اور وہاں اس کا کیا مفہوم ہے وہ آپ ضرور دیکھیے۔ ہم یہاں پر یہ کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا یا کس جگہ پیش آیا۔ اس بارے میں مورخین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اس قصے سے متعلق واقعات مکہ مکرمہ ہی میں وقوع پذیر ہوئے، کیونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں رہتے تھے۔ اس لیے جو روایات میں آیا ہے کہ کعبہ مشرفہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کی جب آپ یہاں پر آئے، یعنی جب آپ کو سری لنکا میں اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور دونوں کی ملاقات مکے کے قریب عرفات میں ہوئی، تو وہاں سے پھر بحکم ربی یہ لوگ بیت اللہ کے پاس آئے اور وہاں پر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی، اور پھر اس کے بعد کافی سالوں کے بعد، یعنی تقریباً 13,000 سال کے بعد حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबे की दीवारों को ऊंचा उठाया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में इशारा मिलता है कि वइज़ यरफ़उ इब्राहिम अल कवाइदा मिनल बैती व इस्माइल, और याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे। यानी यहाँ पर इस आयत करीमा में ये इशारा मिल रहा है कि दीवारें बुलंद करने का अमल जो था उसकी बुनियादें पहले से थी मौजूद, और जो है तो दीवारें बुलंद करने का जो अमल था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया। तो ये पहली रिवायत मिलती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्के ही में आपने बुदबाश सबसे पहले इख्तियार की, उसके बाद आप वहां से शाम की तरफ आपने हिजरत की। अब आप देखें कि दूसरी रिवायत में ये आता है कि शाम के शहर दिमिश्क के शुमाल में कासियून नामी एक पहाड़ है, उसमें एक मशहूर गार है जिसे उनी गार कहा जाता है। वहां के आम लोगों का ख्याल है कि काबिल ने इस गार में अपने भाई को कत्ल किया था। दिमिश्क से अल जब्दानी और बलूदान, ये दो छोटे शहर है शाम के, सीरिया के, अल जब्दानी और बलूदान। जब इसकी तरफ हम इस रास्ते पर निकलते हैं, जाते हैं, तो इस रास्ते के दाएं जानिब दरियाए बर्दा लगता है। इसकी एक वादी है, उसका नाम है तकिया। तो इस तकिया की जगह पर बुलंद पहाड़ पर एक कब्र है जिसकी लंबाई तकरीबन 15 मीटर है, यानी तकरीबन 50 फीट इस कब्र की लंबाई है। और वहां के मकामी लोगों का कहना है कि ये कब्र हाबिल की ही है। तो ये हवाला है कससुल अंबिया इब्न कसीर 52, कससुल अंबिया अल सालबी 44, कससुल अंबिया अल तिबरी 74 और कससुल अंबिया अल नजार 22, जिससे मैंने ये तमाम चीजें अग्ज़ की हैं और आप तक पहुंचाई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने उनके काम रश्द हिदायत और दावत और तबलीग की जिम्मेदारी उठाई। हजरत हाबिल की शहादत के बाद अल्लाह तबारक तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हाबिल का नामुल बदल हजरत शीत अलैहिस्सलाम की शक्ल में अता फरमाया। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हमने इस तमाम पूरे जमाने को जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इसको हमने 3 स्पान में तकसीम किया था। तो हम अब इस वक्त में पहला जो स्पान है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान का था, उसमें हमने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही नबी का जिक्र कुरान मजीद में आता है, वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। लेकिन अहादीस मुबारका में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले हजरत शीत अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर मिलता है, जो कि कुरान मजीद में हजरत शीत अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया। लेकिन अहादीस में आया है कि आप भी अल्लाह के नबी थे, हजरत शीत अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान ये हिजरे मुबारक जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है वो किस तरह से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक, हजरत लामिक बिन हजरत मतुशल्क, हजरत मतुशल्क बिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जो है खनुक भी है, अखनुक भी कहते हैं उनको, और खनुक भी कहते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यर्द, यर्द बिन महलाइल, महलाइल बिन कैनन, कैनन बिन अनूश, अनूश बिन शीत और शीत बिन आदम अलैहिस्सलाम। तो ये जो है सिलसिले नसब जो बाइबल में आया है वो मैंने आप तक ये दोहराया है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इन जो ये 10 जो कर्न हैं, या 10 नस्ल है, या 10 जमातें हैं, या 10 उम्मतें हैं, तो इनका जमाना जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10,000 साल पर मुश्तमिल है। अब इनमें हम ये देखें कि इनमें नबी कितने आए और रसूल कितने आए। तो सबसे पहले आप देखें कि मैंने हदीस पाक एक आपको बयान की थी पहले एपिसोड में हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जिसमें बताया गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और उनके बाद हजरत शीत अलैहिस्सलाम जिनके बारे में मैंने बताया कि अहादीस में जिक्र मिलता है कि आप भी नबी थे, और हजरत हाबिल के बाद में अल्लाह ताला ने उनको आदम अलैहिस्सलाम को हजरत शीत अलैहिस्सलाम की शक्ल में उनका नामुल बदल अता किया था। हजरत शीत अलैहिस्सलाम के बाद 4 ऐसी नस्लें हैं जो कि ना तो नबी हैं ना तो रसूल हैं। हजरत अनूश, हजरत कैनन, हजरत महलाइल और उनके बाद हजरत यर्द। ये 4 पुश्ते जो है ये नबी नहीं हैं, लेकिन इनके बाद हजरत यर्द के बेटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, जो कि 7वीं पुश्त में आए। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद हम देखें कि फिर जो 2 नस्लें ऐसी आ रही हैं जो कि नबी नहीं है। पहले 4 नहीं थी, अब जो 2 नहीं है इस 10 नस्लों के अंदर, जिसमें हजरत मतुशल्क, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत मतुशल्क और उनके बेटे हजरत लामिक, और फिर हजरत लामिक के बेटे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, जो कि दुनिया में सबसे पहले रसूल हैं, यानी जो दुनिया की तरफ सबसे पहले रसूल बनाकर भेजे गए।
جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے پوری دنیا کی طرف، پورے گلوب کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح سے آخری رسول آپ دیکھیں، آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی فضیلت کا جو ایک دلیل، روشن دلیل جو قرآن پاک میں آئی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیما کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، آپ سے بھی، یعنی نمبر 1 پر آپ سے بھی، نمبر 2 اور نوح علیہ السلام سے، نمبر 3 اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبروں کی جو فضیلت سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں آئی ہیں، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ تمام انبیاء اور رسل میں یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جس کا کہ ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ تفضیل جو خود قرآن بیان کرتا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ پیغمبر جو ہم بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی فضیلت جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی اپنے انبیاء کرام کو ملی ہے، اپنے پیغمبروں کو ملی ہے، لیکن تفریق نہیں ہے۔ اب آپ کہیں تفریق کیا چیز ہے؟ یعنی آپ یہ فرق نہ کریں کہ ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہ مانتے ہیں، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں جن کے نام کلام پاک میں موجود ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب رہی دوسری بات کہ دوسرے علاقوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ جاری رکھا تھا، جیسا میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ آیا ہے، جو احادیث صحیحہ میں ملتا ہے ہم کو۔ اب وہ جو ہے جن جن مقامات پر بھی آئے تھے، وہ ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے اور وہ کون تھے۔ لیکن یہ جو 25 نام قرآن مجید میں آئے ہیں، جن کا کہ ہم تذکرہ اپنے مطالعے میں کر رہے ہیں، تو یہ 25 انبیاء کرام کا جو معاملہ تھا وہ یہاں پر بالکل نام کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے اندر کوئی ہم کو فرق نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں آ رہا ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ان کا قول ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے، الگ نہیں کرتے۔ تو میرے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کے درمیان فضیلت رکھی ہے، یعنی درجے رکھے ہیں، لیکن ان میں فرق نہیں رکھا۔ اب حاضرین، ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً بات کرتے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر کیجئے، بلا شبہ وہ انتہائی سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں یہ ایک جگہ ایک مقام پر ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں آیا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک یہ صالح بندے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 2 جگہ پر، 2 مقامات پر قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بتایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جائے پیدائش، ناظرین، ایک علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ یہ منفیس اور منف اب جو ہے اس وقت میں اس شہر کا نام میمفس ہے، اور یہ دریائے نیل کے کنارے پر آج بھی آباد ہیں، جو کہ قاہرہ سے قریب ہے۔ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دوسرے گروہ کی رائے، جیسے کہ پہلے گروہ کی رائے میں نے بتایا کہ یہ مصر میں پیدا ہوئے میمفس کے مقام پر، لیکن دوسرے مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل یہ بھی دریائے فرات کے کنارے پر ایک بہت ہی قدیم شہر ہے، اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ العظیم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لوگ ہرمیس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک نام ہے جس کے معنی تجربہ کار، مضبوط رائے رکھنے والا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے مقامات ہجرت کی جانب، کہ آپ نے کہاں کہاں پر کن کن شہروں میں ہجرت کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کیا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں: ایسکیلیوس، ایلاویس،
जोस और जोस अमून, ये 4 हाकिम आपने मुख्तलिफ इलाकों में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वहां पर हुकूमत के लिए मुकर्रर किए थे। अब हम देखें कि आप मिस्र में पैदा हुए और वहां से दावत और तबलीग के लिए आप अतराफ आलम में फैल गए। वहां पर हिजरत की आपने, मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ शहरों को विजिट किया, जिनमें कुछ शहर काबिल जिक्र हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें कि ये शहर कहां पर है, तो मिस्र, शाम और इराक, जो आज के ये मुल्क हैं जदीद नक्शे के हिसाब से, ये उस वक्त में यहाँ पर कुछ कदीम शहरों की निस्बत आपसे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर आप की पैदाइश हुई शहर मेम्फिस, इसके मुतालिक जानते हैं कि मिस्र का ये कदीम शहर दरियाए नील के किनारे आबाद था। मेम्फिस के खंडर मिस्र की राजधानी काहिरा से जुनूब में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर मिलते हैं। ये शहर आज भी, इसके खंडरात काहिरा से जुनूब में 30 किलोमीटर के फासले पर है और दरियाए नील के किनारे ये शहर आबाद था, जैसा मैंने बताया। और इस शहर के आसपास जो है वो मशहूर अहराम मिस्र, हालांकि ये जो है ये आपके कई सालों के बाद बने दुनिया में। आप जब इन शहरों की आपने जब बसाया इन शहरों को, उस वक्त में ये चीजें अहराम मिस्र वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि अहराम मिस्र की तारीख जो है वो आज से 4500 साल पहले, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी 500 साल पहले की तारीख है अहराम मिस्र की। और ये अहराम मिस्र जैसे मारूफ है कि मिस्र के शहर जीजा, जिसे गीजा भी कहते हैं, क्योंकि मिस्री जो है वो जीम को ग कहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन ग निकालते हैं, तो इसलिए जीजा को गीजा भी कहते हैं। तो गीजा या जीजा के फिरौनी अहराम जो है वो बहुत मशहूर हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तारीख, इन अहराम मिस्र की तारीख जो है आज से 4500 साल कबल, आज से 4500 साल पहले जो ये अहराम मिस्र बनाए गए। और सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन आज से 10,000 साल पहले का है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना 4000 साल पहले का है, तो ये अहराम मिस्र आपसे भी 500 साल पहले वजूद में आ चुके थे। तो ये शहर जो है जहां पर ये अहराम मिस्र है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया जीजा, इसी तरह से एक दूसरे कुछ अहराम मिस्र जो है वो सकारा एक जगह है, वहां पर है, वो भी करीब है इसी से, मेम्फिस से बिल्कुल आसपास में ये तमाम जगह, बहुत कम 20, 25, 30 किलोमीटर के फासले पर ये आसपास में ही ये तीनों शहर। और एक मशहूर शहर थेबिस, ये भी जो है इसी इलाके से करीब है, जहां पर आप वो देवी का मुजस्समा देखते हैं जिसका सर औरत का है और इसका बदन शेर का है। और ये मशहूर ये बुत अबुल हौल का बुत कहलाता है, जिसे इंग्लिश में स्फिंक्स कहते हैं। और ये भी जो है करीब, ये बिल्कुल दरियाए नील के किनारे पर है और ये तमाम आसार कदीमा के खंडरात आज भी काहिरा से करीब मौजूद है। तो ये पहला शहर था मेम्फिस, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। अब दूसरा शहर हम देखते हैं शाम का, जो कि हिम्स कहलाता है, जिसे दूसरा नाम होम्स भी है और इंग्लिश में से होम्स कहते हैं। और एक चौथा नाम इसका इमिसा है। और इसके बाद अब जो है इसे जदीद एक नाम से याद किया जाता है, द सिटी ऑफ खालिद इब्न अल वलीद, क्योंकि इसे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था, इसलिए ये शहर। और वहां पर आपकी और आपकी ज़ौजा मोहतरम की कब्रें दोनों की इसी शहर में है। और ये बहुत पुराना शहर, मैं जैसे बताया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर दावत और तबलीग की और इस शहर को आबाद किया। ये शहर जो है वो शाम का कदीम तारीखी शहर है और इस्लामी तारीख के एतबार से हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस शहर को फतेह किया। यह शहर मुसलमानों ने 637 ईस्वी यानी 14 हिजरी में फतेह किया। और जो दारुल हुकूमत सीरिया का जो दारुल हुकूमत दिमिश्क है, उससे 167 किलोमीटर यानी 167 किलोमीटर शुमाल में, नॉर्थ में ये शहर मौजूद है। और ये शाम के 3 बड़े शहरों में से एक शहर है। शाम का सबसे बड़ा शहर जो दिमिश्क है, जैसे मैं बताया, वो राजधानी उसकी। दूसरा शहर हल्ब है, जिसे एलिप्पो कहते हैं। तीसरा शहर जो है ये हम्स या हुम्स, ये जो है सीरिया का तीसरा बड़ा शहर है। यह शहर दरियाए आसी के किनारे वाक़ है। इसे ओरंटिस रिवर भी कहते हैं, इस दरियाए आसी को। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि खालिद बिन अल वलीद और उनकी ज़ौजा मोहतरमा और इसी तरह से एक मशहूर सहाबी है हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी भी कब्र यहाँ पर है। और ये बहुत मशहूर शहर है सीरिया का और इस वक्त जंग की जद में है, खाना जंगी की जद में है ये शहर। बल्कि तमाम जितना सीरिया जो है इस वक्त में खाना जंगी की बदतरीन जद में है।
नाज़रीन, अब हम तीसरे शहर की तरफ चलते हैं जिसका नाम इराक का शहर है। बहुत कदीम तहजीब है इसकी, बाबुल, जिसे बेबीलोन, इंग्लिश में बेबीलोन कहते हैं। ये शहर मुल्क इराक का कदीम शहर है और लफ्ज बाबुल अक्काडी कदीम जबान का लफ्ज है जो दो अल्फाज बाब और ईल, बाब उस जबान में भी बाब को जो है वो दरवाजा ही कहते थे जैसे कि अरबी में, क्योंकि अरबी में बहुत से अल्फाज जो है वो इब्रानी से और जो है तो अक्काडियन जबान से आए हैं। आरामी, ये बहुत पुरानी जबान है, आरामी, इब्रानी, अक्काडी, ये बहुत पुरानी जबानें हैं उस खत्ते की। तो बाब के मानी दरवाजा और ईल के मानी खुदा, यानी खुदा का दरवाजा। बाबुल के मानी खुदा का दरवाजा। ये शहर इराक में दरिया फरात के किनारे वाक़ है और इसके मौलिक बागात, मौलिक कहते हैं सस्पेंडेड, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, आपने सुना हो नाम, ये बहुत मशहूर नाम है और बहुत ही कदीम ये इसकी तारीख है जिसका कि जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। आयत नंबर 102 में इस शहर का जिक्र जो है कुरान मजीद में आया है। बेबाबिला हारूत और मारूत, हारूत और मारूत दो फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला ने इस शहर में उतारे थे, जिसके निस्बत से सूरह बकर की आयत नंबर 102 में जिक्र आता है। तो ये शहर दरिया फरात के किनारे वाक़ है। इसके मौलिक बागात हैंगिंग गार्डन मशहूर हैं, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जिन्हें बख्त नसर ने 600 कब्ल मसीह के लगभग तामीर किया था। ये अक्काडियन सल्तनत का एक हुक्मरान था जिसके बारे में हम बहुत तफसील से इंशाअल्लाह अज़ीम जब हम बनी इसराइल की तारीख पर बात करेंगे तो उस वक्त में मैं आपको बख्त नसर के मुतालिक तफसीलन बात करूंगा। तो जिन्हें बख्त नसर ने 600 कब्ल मसीह के लगभग तामीर किया था, इसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। इस शहर का जिक्र जैसे मैंने बताया कुरान मजीद में आया है। आजकल बाबुल के खंडर इराक के शहर अल हिल्ला, ये अल हिल्ला एक शहर है इराक का जो कि करबला से बिल्कुल करीब है। तो ये खंडर जो है अल हिल्ला से 10 किलोमीटर फासले पर है। कल्दानी बादशाह, यानी जो बख्त नसर की बात मैं जिसको कह रहा हूँ, ये कल्दानी बादशाह था, कल्दानी दारुल हुकूमत का बादशाह था। और अल हिल्ला ये मशहूर शहर करबला से बिल्कुल करीब में है और दरिया फरात के किनारे पर आबाद है और इसके दूसरे किनारे पर जो है तकरीबन 10 किलोमीटर फासले पर बाबुल के खंडरात मिलते हैं। तो कल्दानी बादशाह बख्त नसर, जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह अज़ीम जब तारीख बनी इसराइल पर बात करेंगे उस वक्त में तफसीलन इस हाकिम पर बात करेंगे जो अक्काडियन डायनेस्टी का हुक्मरान था, जिसने 586 कब्ल मसीह में यरूशलेम को तबाह किया था और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर बाबुल ले आया था। फारस के बादशाह, फारस पर्शिया जिसको के आजकल ईरान कहते हैं, उसके बादशाह कोरोश कबीर, जिनको साइरस द ग्रेट भी कहते हैं, उन्होंने 539 कब्ल मसीह में बाबुल पर कब्जा कर लिया और बनी इसराइल को रिहा कर दिया। जदीद मुफस्सिरीन साइरस आजम को जुल्करनैन कहते हैं। इसी तरह मशहूर जमाना यूनानी फातह सिकंदर आजम 323 कब्ल मसीह में बाबुल ही में फौत हुआ। देखिए, कुछ मुफस्सिरीन इसको भी जुल्करनैन कहते हैं लेकिन जो कि गलत है। अब ये जो हवाला जात हैं ये मैंने क़ससुल अंबिया इब्न कसीर रहमुल्लाह से 63, क़ससुल अंबिया अल सालबी से 50 रेफरेंस नंबर 50 और क़ससुल अंबिया अल तिबरी से रेफरेंस नंबर 80 और क़ससुल अंबिया अल नजार से रेफरेंस नंबर 24 और अल लिसान हिरमस से लिया हूँ। नाजरीन, अल्लाह तबारक तआला ने अपने कलाम पाक कुरान मजीद में सूरह अंबिया में इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाते हुए, आपकी मदह फरमाते हुए इन्हें नबी और रास्तबाज सच्चा करार दिया है। इसी तरह दूसरी आयत करीमा में रफ़ानाहु मकानन अलिया सूरह मरियम में, और हमने उनको बुलंद मर्तबे पर फाइज फरमाया है। बुखारी शरीफ में इसकी वजाहत अल इसरा वल मेराज की हदीस मुबारक से, जिसका नंबर है 349, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है, जिसमें बयान हुआ है कि चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथे आसमान पर हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब अकनाफ आलम यानी अतराफ आलम की दावत और तबलीग से मिस्र लौटे तो अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें 82 साल की उम्र में अपनी जानिब उठा लिया। ये थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के, और आपके हालात कुरान पाक में सिर्फ 2 मकाम पर आए जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए हमने बहुत ही मुख्तसरन जो बात ऑथेंटिक ज़राए से हमारे तक पहुँची हैं हमने वही बयान की है। नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ को आगे के एपिसोड में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग तमाम लोग इसी तरह से देखते रहिए हमारे इस सीरीज़ को। मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमको हमारे अंबिया व कराम के किस तरह से उनकी सीरत और किस तरह से उनके हालात थे वहाँ से हम लोग सबक हासिल कर सकें और कुरान पाक पर गौर फिक्र कर सकें, जिसकी की दावत खुद कुरान पाक हमको दे रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।